दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। व्यूअर्स, you are being welcomed in your own channel कानूनी चर्चा। जैसे आपको जानकारी है कि हम लॉ सीरीज के एपिसोड्स बनाते हैं और पिछले जो एपिसोड मैंने जो बनाए हैं उसके 3 पार्ट किए हैं। वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिलेटेड हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान किसी पर्सन का जो ऑफ एन he may be an accused of an offense, he may be a witness or otherwise having somehow related to investigation, inquiry or trial of a case, उनकी कंपेल अपीयरेंस करनी है इन 3 प्रोसीडिंग्स के दौरान, investigation, inquiry and trial before the concerned. It may be before the investigating officer, it may be before the office in charge of police station or anybody else whosoever is an inquiry officer, and during trial before a magistrate or a court. Then I have already talked about there are the 3 parts of chapter 61. It's chapter 6 starting from section 61 onwards. Then section 1A part is related to summons, how summon, what is the form of the summon and how those are to be served. Summons are, I have already said that summons are to be in duplicate, to be issued and to be served accordingly. But warrants are only, it has no having duplicate brunt copy, but it can be perused, seen, its contents can be seen by the accused whensoever the warrant is executed against him. This is what related to warrant. What I have talked earlier, the summons and warrants, those are can be issued by the concerned magistrate or court. It is to be served by the process server of the court which issues. If the summon or warrant is to be sent outside the jurisdiction of a particular court, issuing court you may say, then it is to be sent to the concerned other authorities. I have referred those, I will not go in detail. You can see in case summons and in case of warrants. I have also talked about reciprocal arrangement available under section 105 regarding service of summons and execution of warrants. Execution of warrants may be bailable and non-bailable. There is a search warrant is also referred in 105. How those are to be executed. But attachment warrant is also there. It is outside the jurisdiction of Indian courts. That is under a treaty. Some treaties, you are knowing that contracting states, there is a arrangement between the different under UN convention, UN treaties or private treaties between 2 countries. Then I have also referred guideline issued by this Ministry of Home Affairs regarding the service of summons, warrants, attachment warrants, this search warrant and other processes. There is a guideline issued by the, there is a reference that magistrate should give a sufficient time as per the guidelines for having service or execution of the, that is a protocol. That is, I have referred in earlier, I have made 3 earlier episodes with regard to these. Now today I am going to discuss about proclamation and attachment. If appearance
is not secured in the manner as provided in chapter 6 A and B, then we have to resort to proclamation. For what proclamation is? To declaring the person who is absconding, concealing as an absconder. Then after that, simultaneously an attachment order to be issued regarding attachment is movable or immovable property of the absconder. The procedure provided, I will go by reading those provisions or relevant provisions available. This is, let me start and read out the relevant provisions. For my viewers, for my दर्शकों के लिए मैं ये पढ़ूंगा कि कौन सा ये हेडिंग है, सी है, जैसे मैंने रेफर किया है जिस चैप्टर 6 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. आज हम कन्फाइन करेंगे ये है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 82. This relates to proclamation for person absconding, जिनकी हम सिक्योर नहीं किए जा रहे हैं, क्या प्रेजेंस बाय ordinary summons or by issuance of warrant or even by non-available warrant. Now, how about procedure to be adopted for proclamation of the absconders? The reference is, there is a reference of word person, not of accused. Now, that we will discuss. Section 82, let me start with proclamation for person absconding. Clause 1, if any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that is for recording of satisfaction, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded, जिसके मतलब जैसे मैंने पहले भी बात की कि भाई अगर किसी के नेचुरली पहले तो समन है ऑर्डिनरी प्रोसेस और डिपेंड्स अपॉन कि समन में कौन से ऑफेंसेस में हमने समन निकालना है, किसमें वारंट्स निकालना है, जो उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए. तो उसकी भी बात मैंने पीछे कर चुका हूं. किसके खिलाफ हम ये करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, तो एविडेंस से प्राइमा फेसी इंक्वायरी शम सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है कि the said person is absconding and concealing himself. Proclamation is required when we are not in a position to secure the presence of the person who is absconding or otherwise concealing him in order to avoid the service of the summons or execution of the warrant. So that such warrant cannot be executed. He is concealing, he is absconding. Such court may publish a written proclamation. इस सूरत में क्या करना पड़ेगी, एक प्रोक्लेमेशन, एक उसको हम कहते थे उर्दू में मुनादी करानी पड़ेगी, एक डंडोरा टाइप का पीटना पड़ेगा. वो ड्रम बीटिंग भी होती है और वो पब्लिकेशन भी होती है राइटिंग में. वो थोड़ा सा आगे हम प्रोसीजर पढ़ लेंगे कि कैसे करना है. रिटन प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा. ये रिटन भी पहले रिटन होगा, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, और उसको मौका देना है किसको, जो भी पर्सन जिसके खिलाफ ये प्रोक्लेमेशन इश्यू होने जा रही है. और सर्कमस्टांस मैंने बता दी है कि उसकी वो अब्सकॉन्ड कर रहा है या कंसील कर रहा है, तो उसको दे मौका देंगे टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम भी देना पड़ेगा और डे भी देना पड़ेगा, जो मंथ डे है, नॉट लेस देन, तो लेस देन 30 डेज का टाइम देना उसको आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन. तो उसके 30 दिन के उसका मौका देंगे कि आप पर्टिकुलर जगह पे, ऑब्वियसली फलाने ऑफिसर के पास हो जाओ, कोर्ट में हो जाओ, और स्पेसिफाइड टाइम करेंगे, डेट करेंगे, डे करेंगे ये उस प्रोक्लेमेशन का, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन. मैंने पहले ही जुबानी बता दी. सेकंड पार्ट है द प्रोक्लेमेशन कैसे करने हैं. shall be published as follow. What are the procedure to be adopted for publication of the proclamation? पहले क्या है, 1 रोमन 1 है जो
सब क्लॉज या सब सेक्शन 2 का है, सेक्शन 82 में पढ़ रहा हूं। इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑलरेडी रिसाइड। तो उसको पढ़ना है। तो कई बार क्या है, एक बंदा खड़ा होके ऊंची जगह पे, और जो विलेज के सेंटर में होती है, पब्लिक प्लेस होती है, उसमें वो पड़ेगा जहां पे लोग इकट्ठे ऑर्डिनरी मिल जाते हैं आउटसाइड द हाउसेस। तो उसमें हम कई बार ड्रम बीटिंग होती है और साथ साथ वो बोलता है कि भाई फलाना बंदा अब्सकॉन्ड कर रहा है, कंसील कर रहा है, और वो नहीं मिल रहा है, तो उसको हम ये घोषित करते हैं अब्सकॉन्डर घोषित करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, जहां जहां वो ऑलरेडी रिजाइड करता है, जो उसका गांव है, जो उसका घर है, उसके इर्द गिर्द हम एक बंदा जो होगा ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी है ये प्रोक्लेमेशन करने के लिए, वो अपनी बात रखेगा, बात करेगा। इसमें जो भी उसको मटेरियल होगा वो अपना वो कर देगा ये। तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा पार्ट है। एक तो रीडिंग वाला आ गया, दूसरा क्या करना है, जो राइटिंग में चीज है, इट शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। जो राइटिंग उसने जुबानी बोला, उससे पढ़ के उसी को पब्लिश कर देना सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, पार्ट ऑफ द हाउस, जहां उसका घर है। किसका घर, जो अब्सकॉन्ड कर रहा है, जो कंसील कर रहा है अपनी, जहां उसके घर में, जहां उसके जो भी उसका होम स्टेड है, इसको हाउस और होम स्टेड में ये रखा हुआ है, ऑर्डिनरी रिजाइड्स एंड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन। वही हो गया जहां पे ड्रम बीटिंग हुई, जहां पे वो उसने बताया, जो भी सर्विंग अथॉरिटी है, तो वहां पे उसको पेस्ट किया जाएगा। तो फिर क्या है जी, हो गया पेस्टिंग जी, हो गया। फिर एक और है, एक कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोड। जो कोड इशू कर रहा है, तो जो कोड का नोटिस बोर्ड होता है, वो नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देंगे। जो लोग वकील लोग आते हैं, लिटिगेंट देखते हैं कि कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है, क्या क्या प्रोसेस है, वो नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, तो कोई भी पढ़ सकता है जो कोड हाउस के बाहर होगा। एक ये तरीके आगे, एक और तरीका है, वो ये शेल वर्ड इस्तेमाल किया है सब सेक्शन 2 में। तो इसमें आ गया नेक्स्ट जो है, इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है। पार्ट 1 जो रोमन 1 था, 2 सब सेक्शन का या क्लॉज का, उसमें शेल था, शेल ऑब्लिगेटरी था, दूसरा मैंडेटरी था, दूसरा एक डिस्क्रिप्शन और दी है, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं पब्लिश। जो प्रोक्लेमेशन करनी, वो क्या है, वो न्यूज पेपर में आपको पब्लिश करना। एक द कोड में आल्सो if things fit, this is discretion of the court, depends upon direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person resides। लेकिन उस जो न्यूज़पेपर वैसा होना चाहिए जिसकी उस लोकेलिटी में, जहां जिसके खिलाफ जो प्रोक्लेमेशन हो रही है, उस वहां तक ये उसकी सर्कुलेशन बढ़ता हो, पेपर लोग वो उस पेपर को पढ़ते हो लोग। तो ये एक आगे ये आ गया हमारा प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा रिगार्डिंग अब्सकॉन्डिंग ऑफ ए एक्यूज, कि वो अब्सकॉन्ड कर रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है। तो ये एक हमारा प्रोसेस था, ये हमने कवर कर ली सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। नाउ वी विल गोइंग टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन of section 82. A statement in a writing by the court issuing the proclamation to that fact that proclamation was duly published on a specified day, the manner in which the specified in clause 1 of subsection 1 shall be conclusive evidence that the requirement of this section has been complied with and proclamation was passed on such day। इसमें क्या है, ऑब्वियसली कोर्ट को सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कोर्ट को एक ऑर्डर करना है।
सेटिस्फेक्शन जो पहले ऊपर किया, पहले वो प्रोसेस सर्वर, सर्विंग अथॉरिटी जिसने प्रोक्लेमेशन की है, जिसने वो पब्लिश किया है, चाहे वो न्यूज़पेपर का एक आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी, एक जहां वहां पे तो वो उसकी इंडोर्समेंट आ जाएगी। जो सर्विंग अथॉरिटी है, जो पेस्टिंग जिन्होंने पब्लिश किया है, पब्लिशिंग अथॉरिटी है, उसकी आ जाएगी। तो फिर उसके बाद कोर्ट कंसर्न, मैजिस्ट्रेट कंसर्न, वो एक ऑर्डर देगा, राइटिंग में करेगा और कहेगा कि मैं ये ऐसा ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया है प्रोक्लेमेशन करने के लिए। वो फिर जो ऑर्डर होगा, जो रेलेवेंट रिकॉर्ड होगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि प्रोक्लेमेशन उस बंदे के खिलाफ हो चुकी है, जिसके जो कंसील कर रहा है, जिसके खिलाफ जहां अब्सकॉन्ड कर रहा है, जिसके खिलाफ जो प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने निकाली हुई है। तो ये एक तो ये इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारी सब सेक्शन 4 है। इसमें क्या है, बेल प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1, जो सेक्शन हमने ऊपर किया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। नाउ वर्ड कैसे आ गया, अक्यूज्ड ऑफ, ये अभी ऑफेंसेस भी रेफर करने लगा है, पहले पर्सन था, अभी क्यों अक्यूज लिया, क्योंकि आगे ऑफेंसेस भी उसके साथ जुड़े, उस बंदे के साथ जो अब्सकॉन्ड कर रहा है, कंसील कर रहा है, जिसके खिलाफ प्रोसेस समन पहले निकले, ब्रांड निकले, लेकिन उसकी अपीयरेंस, उसका सिक्योर, उसको सर्विस या एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो रही है। तो फिर अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, ये डकैती रिलेटेड है, पहले मर्डर रिलेटेड, 397, 398, 399, 400, 402, 436, ये मिस्क जो ये 436 एमएस चीफ है, फायर आगजनी करना, 449 है, 459 है, और 460 ऑफ इंडियन पीनल कोड की ये जो सेक्शन हैं, इनका अगर अक्यूज्ड होगा, अगर उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन पब्लिकेशन हो चुकी है, जैसे उसका रेफरेंस किया है जो सब सेक्शन 1 के मुताबिक, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर, जो हमने टाइम कितना दिया था, 30 डेज टाइम दिया है, किसको, अक्यूज्ड को, जहां जो इन ऑफेंस के नीचे है। तो अगर वो 30 डेज के अंदर अपीयर नहीं होता है, तो नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी, एंड सच फेल्स टू अपीयर इज नॉट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, जो मैंने पहले कहा स्पेसिफाइड प्लेस बताएंगे उस प्रोक्लेमेशन के अक्यूज को, जब उस बंदे को कहाँ अपीयर होना है, कहाँ, एंड टाइम भी जैसे बात की डेट टाइम, और बाय द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन द साइमल्टेनियस में, अभी फिर डिस्क्रिप्शन आ गई कोर्ट की, नेक्स्ट जो हमारे स्टेप लेना है आफ्टर प्रोक्लेमेशन, वो कौन सा स्टेप है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration back. तो फिर एक ऑर्डर पास, ऑब्वियसली एक ऑर्डर होगा और उसमें उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। और क्योंकि हमने पब्लिश कर दिया उसका रेफरेंस देके, तो फिर हमने एक प्रोनाउंस करना है कोर्ट में। एक्चुअली कोई भी ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसकी प्रोनाउंस होता है, ओपन कोर्ट में होता है, हर प्रोसीडिंग हमारी ओपन कोर्ट में, तो उसको एक ऑर्डर प्रोनाउंस होगा और उसके डिक्लेयर किया जाएगा उस बंदे को, उस एक्यूज्ड को, कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना है, इसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो गई है। द अब सबसेक्शन 5 है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4, जो हमने पीछे पढ़ा है, as they apply to the proclamation published under subsection 1, जो अभी हम बात कर रहे थे 82। तो ये जो 82 के बारे में हमने कहा कि ये प्रोक्लेमेशन कैसे करनी है और उसकी पब्लिकेशन करनी क्या है, और उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर हो गया, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको हमने आफ्टर थर्ड कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, अगर वो नहीं आता है, अपीयर नहीं होता, कंप्लायंस नहीं करता इस प्रोक्लेमेशन की, तो एक ऑर्डर हो जाएगा, एक डिक्लेरेशन हो जाएगा कि वो जो अक्यूज्ड है और जो इसमें सेक्शन में दिया है
उसको प्रोक्लेम्ड, जो सेक्शन हमने 302 जो मैंने पढ़ी है, जो इसमें आई है, तो वो आपने उसको फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है। तो नेक्स्ट कोर्स है फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट रिकोर्स वुड बी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो हमने इसका सी जो था उसका हेड था प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हम आ जाएंगे 83। अटैचमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो अब्सकॉन्ड कर रहा है, जिसकी प्रोक्लेमेशन हो चुकी है और वो प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है, द कोर्ट इशू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, जिस जो मैंने ऊपर पढ़ी है और इंटरप्रेट भी किया है, डिस्कस भी किया है। मे द्वारा डिस्कशन है किसकी? कोर्ट की। फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड, उसमें राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एट एनी टाइम आफ्टर इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, पहले प्रोक्लेमेशन इशू हुई और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए भी हम दिस कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को एक कार्रवाई करने पड़ेगी। प्रॉपर्टी कौन सी अटैच होगी? ऑब्वियसली दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल, एक नॉन मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई डेट भी हो सकती है, कोई दिस थिंग भी हो सकती है, कोई टीवी है, कोई आपको कोई टेबल है, जो भी कोई सामान है, चेयर्स हैं, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आगे मैं पढ़ूंगा, इसमें जिक्र आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम, लेकिन किसकी होनी चाहिए? जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है। जो हमने कुछ में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा है, जो सेक्शन में मैंने है, तो कुछ में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन एक्यूज भी रेफर किया है, कोई पर्सन भी किया है। आगे क्या है? फिर एक प्रोवाइजो आ जाता है इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 के नीचे, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट ए टाइम ऑफ द इशूएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है प्रोक्लेमेशन के होने के बाद, बाय एफिडेविट और अदरवाइज, दैट ए पर्सन इन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड। तो जनरली जो प्रेयर करेगा कोर्ट में फॉर अटैचमेंट, या प्रोक्लेमेशन उसने पहले की तो उसकी पहले हानर होगी एक पार्ट प्रोक्लेमेशन, तो फिर दूसरा अटैचमेंट करवाने के लिए वो कंसर्न्ड अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी हो सकती है, या प्राइवेट कंप्लेनेंट भी हो सकता है, हूसोवर ही में भी, तो उन्होंने एप्लीकेशन देंगे अटैचमेंट के लिए और सपोर्टेड विद एन एफिडेविट होगा। ये जो ये इसकी प्रक्रिया जो 83 में अटैचमेंट के लिए है। फिर क्या होगा उसमें? एफिडेविट में क्या मेंशन करना, एप्लीकेशन में क्या करना, ताकि मैजिस्ट्रेट नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सके अपनी फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अब्सकॉन्डर। वो को फिर क्या करना है, उसमें क्या लिखना पड़ेगा एफिडेविट या एप्लीकेशन में, कि वो जो जिस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको डिक्लेयर किया गया है, वो इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको पता चल चुका है कि प्रोक्लेमेशन मेरे खिलाफ में आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और नेक्स्ट कोर्स क्या है कोर्ट का, जो जिसका मैजिस्ट्रेट जो भी अथॉरिटी, तो वो क्या है कि नेशनल ने मेरी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, तो उससे पहले वो कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन अगर हो जाए ऑन एप्लीकेशन और एफिडेविट फाइल्ड बाय द कंसर्न एजेंसी whosoever he is seeking attachment of the property, उसमें हो जाए, तो फिर क्या करेगा कि वो डिस्पोज ऑफ कर देगा सारी प्रॉपर्टी और उसका पार्ट एक। और फिर है नेक्स्ट है इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव ऑब्वियसली रिमूव क्या करेगा, किसी की लैंड थोड़ी करेगा, वो ऑब्वियसली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, अब उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा के कहीं और ले जाएगा। तो फिर क्या होगा नेक्स्ट, क्या करेगा, ये दोनों आर है इसमें, आइदर ऑफ द कंडीशन में क्या करेगा, इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशुएंस ऑफ अ प्रोक्लेमेशन। तो उसी वक्त भी कर सकता है जब प्रोक्लेमेशन इशू हुई, डिक्लेयर कर दिया ऑफेंडर, तो उस वक्त ही साइमल्टेनियस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अगर प्रेयर है फ्रॉम द कंसर्न्ड एजेंसी। Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made
and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. देखिए दो इसमें आ गई, अगर तो उसी डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो निकलेगी अटैचमेंट ऑर्डर निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, अगर ये पर्टेनिंग होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, तो ये किसके पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में, जिसकी कोर्ट भी उसी जुरिस्डिक्शन में है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी उसकी जुरिस्डिक्शन, तो अगर बाजार भेजना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कौन, तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया वो उस पर इंडोर्समेंट करेगा और वो उसको जो भी अटैचमेंट होगी उसको लागू करेगा, अटैचमेंट करेगा। प्रॉपर्टी अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन सा करेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का करेगा। जिसने इशू किया ब्रांच मैजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने, तो अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में तो उस वो डीम करेगा, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वो इंडोर्समेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू वो होगी, ये दिस अटैचमेंट का प्रोसेस अंडरटेक किया जाएगा। इफ प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज ए डेट, डेट क्या है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, डेट होगी, कैसे करना है उसको, बाय सीजर, और फिर उस मूवेबल प्रॉपर्टी का या डेट का एक रिसीवर मुकर कर देना, जहां उसको सीज कर लेना, ये और है हर जगह, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। देखिए अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जब कोई डेट है, तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर डेट किसी को उसका पैसा देना है जहां, तो उसको हम उसका ऑर्डर कर देंगे और हिस्ट्री ऑर्डर कर देंगे, ये वैली मूवेबल प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, खुद नहीं बेच सकता, कौन, प्रोक्लेम ऑफेंडर, जहां उसके बिहाफ पे कोई और नहीं बेच सकता, जहां उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, जी ऐसा हमने ऑर्डर निकल जाएगा। तो प्रेयर ऐसी होगी तो ऑर्डर होगा, फिर आगे बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी, कि उसको किसी दूसरे को हैंड ओवर नहीं करना है, डिलीवर नहीं करना है, इस किस्म का प्रोहिबिशन ऑर्डर निकाल देगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और बाई ऑल और एनी ऑफ टू सच मेथड एज अ कोर्ट में, जो ऊपर दिए हैं कोई भी इनमें से एक सभी मेथड आप कह सकते हैं, और दो इनमें से ऊपर मेथड जो दिए हैं, बाई सीजर है, बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, और वो जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर देना है कि डिलीवरी ना करे प्रोक्लेम ऑफेंडर खुद, उसके बिहाफ पे वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, डेट है, ये एक तरीका है। आगे है सब सेक्शन 4, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल, पहले हमने बात कर ली मूवेबल प्रॉपर्टी की, अभी हम आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच्ड इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन केस ऑफ लैंड, अगर जमीन होगी, अराजी उर्दू में कहते हैं, तो अगर लैंड होगी तो फिर क्या करना है, फिर उसने लैंड है पेइंग लैंड रेवेन्यू, अगर हाउस होगा फिर उसकी कलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं, फिर आपने जो भी रेलेवेंट पेपर्स देख रहे हैं, हाँ अगर लैंड रेवेन्यू पेइंग मालिया जिसका देते हैं, द लैंड विच इज सब्जेक्ट टू दिस लैंड रेवेन्यू, तो स्टेट गवर्नमेंट जिसका मालिया लेती है, जहां लैंड रेवेन्यू लेती है, उसकी अटैचमेंट अगर करनी है तो वो किसके थ्रू होगी, क्योंकि कलेक्टर ही जो इसका रिकवरी करता है, चार्ज करता है, जहां कलेक्ट करता है वो कलेक्टर करता है डिस्ट्रिक्ट का, उसका भी एक सिस्टम है, उसको जे जाएंगे अटैचमेंट पर, ताकि उसके नोटिस में रहेगा कि मैंने अटैचमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की है, और वही जो उसका नया रेवेन्यू स्टाफ होता है वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है प्रॉपर्टी, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड, दोबारा वही बात होगी, एंड इन ऑल अदर केसेस, पहले हमने कहा था जो मूल प्रॉपर्टी का जो सब क्लास सब सेक्शन 3 थी, अब हमने 4 की इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में प्रोसेस बता दिए कैसे उसको अटैच करेंगे। तो ये भी वही है, देखिए ये भी तीनों वही है, बाय टेकिंग पोजेशन उसका कब्जा ले लेंगे उस लैंड का, दूसरा है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ उसका रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, वो थर्ड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी,
जैसे विलेज का चौकीदार है, नंबरदार है, जहाँ कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके हवाले भी ये किया जा सकता है, उसको उसका रिसीवर हो सकता है, और रिसीवर का एक प्रोसेस है कि वो उसका पूरा रखेगा कि कितना आया कितना मैंने खर्चा, उसकी वो अकाउंट फॉर उसको करना है फिर देन। तो तीसरा आ गया, बाई एनी ऑर्डर इन विच prohibiting the payment of rent on delivery of the property to proclaimed person or to anyone on his behalf। हाँ, अगर वो जो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी के कब्जे में है और वो जो भी है उसका हो सकता है टीनेंट हो, पेइंग रेंट हो उस प्रॉपर्टी का, उस तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोहिबिशन ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जो भी पोजेशन होगा, जो रेंट दे रहा होगा, टीनेंट होगा, वो उसको उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकलेगा कि आपको पेमेंट नहीं करनी है। किसको? क्यों? जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुका है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और जहां उसके बिहाफ पे किसी दूसरे को भी नहीं करना, उसकी फैमिली को भी हो सकता है, कोई और उसके बाद कोई उसका एजेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। तो ये एक प्रोहिबिशन ऑर्डर हो जाएगा किसके खिलाफ? ये उसके खिलाफ जो पेइंग रेंट कर रहा होगा। By an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of the property to the proclaimed person or to anyone on his behalf। नेक्स्ट है बाई RRR, दोबारा आ गया, कोई भी ऊपर में से सारे मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं अटैचमेंट अंडरटेक करने के लिए, और इनमें से एक या दो मेथड वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ सब सेक्शन 5 सब क्लास 5, इफ द प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ, देखिए हाँ, कभी कोई लैंड होल्डर है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है, अगर कोई लिव स्टॉक है, पेरिशेबल आइटम है, तो फिर उस सूरत में जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होगी अटैचमेंट ब्रंट की, तो पेरिशेबल आइटम को क्या करेंगे? लिव स्टॉक है, मतलब कोई जिनका आर इज ए पेरिशेबल नेचर, द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट इट इज एक्सपीडियंट, अगर कोर्ट को अच्छा लगेगा तो फिर कोर्ट से एक ऑर्डर लेना पड़ेगा इमीडिएट सेल देना, तो उस लिव स्टॉक की और जो पेरिशेबल आइटम होगी जो अटैच, जिसकी अटैच किया, उस वक्त ही उसको सेल करनी है, ओपन सेल ऑक्शन के थ्रू, जो भी प्रोसीजर कोर्ट डायरेक्शन देगी, और जो सेल प्रोसीड होगी, मुझे लगता है वही है, इन सच के द प्रोसीड ऑफ द सेल, सेल प्रोसीड जो होगी शैल बी अवॉइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जैसे कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको डिपॉजिट करवा दो, कोर्ट में ही हमारा एक कोर्ट में अमानत टाइप की, वो उस अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी जो सेल प्रोसीड वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो भी कोर्ट करेगी अटैच प्रॉपर्टी का, वो एक अगली प्रक्रिया है, वो आगे 6 क्या है, द पावर ड्यूटीज लाइबिलिटी ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ द रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये जो है, जो रिसीवर मुकर करता है उसकी वही ड्यूटीज है, वही उसके राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, जो एक रिसीवर के होते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। नो डाउट हम आज पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो सेक्शन रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ रहे थे, लेकिन जो रिसीवर के मुताबिक आया कि वो उसको फॉलो कौन सा प्रोसीजर होगा, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात आ गई, तो मुझे लगता है इसको मैं आज यहीं इसको कर दूंगा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो नेक्स्ट आगे हमारे सेक्शन, आज हमने डील करी 82 प्रोक्लेमेशन अबाउट द absconding or concealing accused or a person, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, और उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी है, मोवल और अमूवल कौन सी अथॉरिटी करेगी, कैसे करेगी, उसके बारे में हमने आज जिक्र कर लिया। तो आगे नेक्स्ट क्या है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट, ये सेक्शन 84 ऑनवर्ड्स फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो मुझे आप दीजिए इजाजत। तो मैं यही कहूँगा
बार बार कहता हूँ कि इसको डीपली देखो, ये मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरे एपिसोड, ये मेरी कानूनी चर्चा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करो एपिसोड को, और दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करो, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे।